हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। A method and techniques of a geography. There is a most important topic arrive here. Method and techniques of geography. Each branch of systematics and the knowledge has a content of method, tools and techniques on which is depend on the further it is a basic objectives. Geography too has its tools, techniques and method. There is the most important. The geography is a tool has its tools and techniques and method. Important among them to the globes and map, diagram, relief model and the spatial and aesthetic method. A cartographics and consider with there is a preparation of map and diagram to be show a distribution of geographical phenomenon. An important method is a geography are and indicators and indicative of natures of various statistics or techniques and models they are used for a regional analysis and to the understand of spectral distribution and interaction. The first here is a cartography. Cartography there is the most important here. The most of use are fascinated with the map. The map there is a cartography is a study of practice of the making of maps and diagram. It is a representing the earth with the maps and abstract or symbols. A map have a traditionally been to made using to pen, ink and paper. But computer have a visualization and cartography and it is a GIS. The GIS method one can be prepared to the map and the diagram with the greater choice and the efficiency. There is the most important GIS techniques is the cartography and spectral data is obtained from the measurement and other published source and can be stored in the database from which it can be extracted of a variety of purpose. As a current trend in there is a field are moving away from the drawing with the ink or paper types. Method of map making to about to the creation of increasingly of dynamics interactive map that can be manipulated is a digitally. And the most commercially qualities map are now made with the map making software that fall into one of three main types. There is computer aided data management. There is CAD. There is computer aided data management. And second here, geographical information system mean GIS. And global is a positioning system mean GPS. The GPS today is the most important. And cartography has a growing from a collection of draftings techniques into a actually science. The cartographers must be understand which the symbols conveys information about the earth most effectively and make such a map that will be encouraged to everyone used to map to find place or use it is their daily work. You know that you are used to the map for find the place used for the daily work. A cartographer must be a learned is a zero dense and the fairly advanced mathematics to understand how to shape of the earth effect the distortion of map symbol and project onto a flat surface for viewing. Geography information system deal with the storage of information about their earth for automatic intervals by a computer in a accurate manner. In addition to be earth server discipline of geography, GIS specialist must be understand computer science and database system. Maps have a traditional been used to explore there is the earth and to explore it is a resource. GIS techniques and the expansion of cartographic science has enhanced their efficiency and aesthetic power of traditional mapping. Now as the scientific community recognize the environmental consequence of human activities, the GIS techniques is becoming a essential tool in their effort to understand the process of global change. The various map and satellite information source can combine in a way that recreate the interaction of complex nature system. Such a visualization can help to predict
and what will be happen to an area if it is the repeatedly is a flooded, and what change are expected if a particular industry is located. The next to be a survival to India inherited from to the British Ordnance or survival. There is a NATMO is the premier organization for mapping in India. It's a map of the million of series are the well now. The organizations of the cartographic unit in the 1960th century at the French Institute is a Pondicherry's brought a significant impact on development of geography in India. It is a publication of vegetation and soil maps at the scale of 1 day. So is a 1 lakh were to the very well received for their cartographic appreciation and the resource mapping, and this unit was upgraded in 1995 as the geomatics laboratory with the emphasis of computer cartography and GIS. The next here is a quantitative method in geography. There is the most important here is a quantitative method in geography. This aspect of geographical techniques deal with the numerical method most are commonly found in a geography. In addition to the spectral analysis, you are likely to find method like a cluster analysis and discriminant analysis is a geographical studies, and this is a statistical techniques are introduced to you is a later chapter, and you will be find that when you undertake the local area study, you yourself will be see how to useful this method are finding pattern and identify to relationship between space and the actives that are performed in them. Regional science method here is the most important. In the 1950th century, the regional science movement arose led to the Welter is led on this, provided a more quantitative and is analytic base to the geographical question. In a contrast to their more quantitative is a tendency of traditional geography. The regional is a science comprised the body of knowledge in which like a regional economics, resource management and location theory, urban regional planning, transportation and communication, human geography, and population distribution, landscape ecology, and environmental quality are examined for the regional development. There is the most important here a management, location theory, urban and regional planning, resource, economics, transportation and communication, human geography, population distribution, landscape economics, and environment quality examined for regional development. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जिसमें हम मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यानी देखा जाए तो क्या इसकी विधि है और जो इसकी जो तकनीकी है जो भूगोल में वो कितना इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है, तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान की जो है प्रत्येक शाखाओं की कुछ विविध यंत्र और तकनीकी होती है। यानी देखा जाए तो कुछ विधियां होती है और कुछ जो है यंत्र और तकनीक होती है जिसके हम द्वारा जो है उसकी अध्ययन कर सकते हैं, जिन पर इनकी बुनियादी आधारित होती है या बुनियादी नींव पे आधारित होती है। भूगोल का भी अपना एक तंत्र, तकनीक एवं विधियाँ होती है। देखा जाए तो भूगोल का भी अपना एक तंत्र होता है, तकनीक होती है और विधियाँ होती है। इसमें ग्लोब, मानचित्र, आरेख और उच्चवाच प्रतिमान और स्थानिक जो है अन्वेषण विधि होती है। कहते हैं मानचित्र विज्ञान का संबंध मानचित्रों और आरेख तैयार करने से होती है जो कि भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण के दर्शाते हैं। देखिए कहते हैं अगर आप देखिएगा जनरली तो कहते हैं ग्लोब, मानचित्र, आरेख, उच्चवाच प्रतिमान, ये सारे चीज़ें जो होती है कई मानने में इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण के बारे में हम जान सकते हैं और ये जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है। भूगोल की मुख्य विधियाँ जो है आगमनिक और नियामक होती है। विभिन्न सांख्यिकी तकनीक और प्रतिमानों का जो हम प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शित के लिए करते हैं और स्थानीय वितरण एवं अन्य क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। देखिए बात करें मानचित्र विज्ञान की तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है कि मानचित्र विज्ञान का जो है क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कहते हैं भूगोल में मानचित्र विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। कहते हैं हमसे अधिकतर मानचित्रों द्वारा आकर्षित होते हैं और ये बात
जनरली आपने भी देखा होगा, मानचित्र विज्ञान मानचित्र व आरेख निर्माण करने का एक प्रयोगात्मक अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। यह मानचित्रों और प्रत्यक्षरों की सहायता से पृथ्वी की प्रस्तुति करती है। पारंपरिक रूप से मानचित्रों का निर्माण कलम, स्याही या कागज की सहायता से होता ही रहता है, परंतु कंप्यूटर ने मानचित्र विज्ञान की क्रांति ला दी है। कहते हैं जीआईएस विधि के द्वारा कोई भी व्यक्ति मानचित्र आरेख अपनी इच्छानुसार पुण्य दक्षता से तैयार कर सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसमें कंप्यूटर की दक्षता के ऊपर बात की गई है। कहते हैं आज कंप्यूटर के दुनिया में पूरा कुछ बदल चुका है। कहते हैं स्थानिक आंकड़े मापन और प्रकाशित स्रोतों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग हेतु डाटाबेस में भंडारित भी किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं और समय आने पर इसको हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। स्याही और कागज द्वारा मानचित्र बनाने की परंपरा अब समाप्ति होती चली जा रही है और इसका स्थान कंप्यूटर निर्मित मानचित्र ले रहे हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कंप्यूटर निर्मित मानचित्र आज बहुत सरल और साधारण होती है। ये मानचित्र अधिक से ज्ञानात्मक और अंतक्रियात्मक भी होती है तथा अंकीय युग से इसे परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात आ जाती है। आज अधिक व्यापारिक गुणवत्ता वाले मानचित्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए गए हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आधारित आंकड़ा प्रबंधन यानी CAD के रूप में होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर आधारित आंकड़ा प्रबंधन। उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भूमंडलीय स्थिति तंत्र यानी GPS का तो और भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं इन सारे चीज़ों का आज कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है और इससे मानचित्र तैयार करना बहुत ही सरल हो गया। मानचित्र कला और रेखन तकनीक के संग्रह से निकलकर वास्तविक जीवन बन गई है और एक मानचित्र कला को अवश्य समझना भी चाहिए कि कौन सा संकेत पृथ्वी के बारे में प्रभावशाली सूचना भी देता है और उन्हें ऐसे मानचित्र तैयार करने चाहिए जिनसे प्रत्येक व्यक्ति मानचित्रों के प्रयोग हेतु काफ़ी प्रोत्साहित हो और इस प्रकार प्रयोग स्थानों को ढूंढने तथा अपने दैनिक जीवन में करें। कहते हैं मानचित्रकारों की भूमि गणित के साथ साथ आधुनिक गणित में भी परंपरागत होना चाहिए ताकि वे समझ सके कि पृथ्वी की आकृति निरीक्षण के लिए चौरस सतह पर प्रक्षेपित मानचित्र के इन्हीं के विकृतों के विकास पर प्रभावित करता है। कहते हैं अगर भौगोलिक सूचना तंत्र पृथ्वी के विषय में सूचनाओं का भंडार करता है जो कंप्यूटर द्वारा स्वचालित एवं उचित रीति से पुण्य प्राप्त भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक GIS विशेषज्ञ के भूगोल के अन्य उप विषयों के साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान तथा आंकड़ा संचार तंत्र की समझ होनी चाहिए। कहते हैं पारंपरिक रूप से मानचित्रों का उपयोग पृथ्वी के खोज और संसाधनों के दोहन में होता जा रहा है। GIS तकनीकी मानचित्र विज्ञान का विस्तार है जिसके द्वारा पारंपरिक मानचित्र की क्षमता और विश्लेषणात्मक शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। आजकल वैज्ञानिकों का समुदाय मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जान गए हैं तथा GIS तकनीकी भूमिगत परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का अनिवार्य उपकरण सा बन गया है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के उपग्रह सूचना तंत्रों को मिलाकर प्राकृतिक तंत्र की जटिलता अंततः क्रियाओं को पुनर्रचना की जा सकती है और इस प्रकार की सजीव कल्पना से यह भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि बार बार बाढ़ से ग्रस्त होने वाले क्षेत्र का क्या होगा या किसी विशेष उद्योग किसी क्षेत्र में स्थापित या विकसित होने से क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे। तो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर ब्रिटिश एनएसए सर्वेक्षण के आधार पर स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बाद राष्ट्रीय अटलस एवं विशेषक मानचित्र संग्रह यानी NATMO भारत में मानचित्र निर्माण की प्रमुख संस्था के रूप में देखी जा रही है। इसके 10 लाख श्रृंखलाओं के मानचित्र बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। 1960 में पांडिचेरी के फ्रांसीसी संस्थान के मानचित्र इकाइयों ने भूगोल के विकास में उल्लेखनीय प्रभाव डाला था और इस संस्था ने एक अनुपात 1 लाख के पैमानों पर वनस्पति और मृदा मानचित्र बनाए थे, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। देखिए इसका अनुपात था 1:1 लाख के पैमाने के रूप में देखा गया, जो कि बहुत काफ़ी विशिष्ट था और इस संस्था के संस्थाओं की मानचित्रण के लिए खूब प्रशंसा भी इसको मिली। 1995 में इस इकाई का दर्जा बढ़कर ज्योमेट्रिक्स और प्रयोगशाला पर किया गया, जिसमें कंप्यूटर मानचित्र और भौगोलिक सूचना तंत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात हमारे समक्ष भूगोल में मात्रात्मक विधियां। देखिए भूगोल की इस तकनीक का संबंध मुख्यतः संख्यात्मक विधियों में से है। स्थानिक विश्लेषण के अलावा भौगोलिक अध्ययनों में गुच्छ विश्लेषण और विविध मूलक विश्लेषण भी शामिल किया जाता है और इस सांख्यिकीय तकनीकों को आप
जो आगामी अध्याय से पढ़ेंगे भी, और इसके द्वारा आप क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों और क्षेत्र के बीच अंतर संबंधों को भी जान सकेंगे तथा प्रतिरूपों को भी पहचानने में बहुत काफ़ी आपको आसानी रहेगी। उसके पश्चात यहाँ पर आता है प्रादेशिक विज्ञान की विधियाँ। देखिए, प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का आरंभ जो है 1950 में वर्सन इसार्ड ने नेतृत्व में हुआ था, और इसने पारंपरिक जो है भूगोल की जो है गुणात्मक प्रवृत्तियों की विपरीत भौगोलिक प्रश्नों को और अधिक जो है मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान भी किया। कहते हैं प्रादेशिक विज्ञान ने ज्ञान के एक जो ऐसे तंत्र का निर्माण किया जिसमें प्रादेशिक विकास हेतु प्रादेशिक अर्थशास्त्र, संसाधन प्रबंधन और स्थानीयकरण सिद्धांत, नागरिकीय तथा प्रादेशिक नियोजन, परिवहन और संचार, मानव भूगोल, जनसंख्या वितरण जो है, भूदृश्य परिस्थिति की पर्यावरण गुणवत्ता का जो है विशेष इसमें आकलन की गई। तो ये बहुत बड़ी बात था कि प्रादेशिक विज्ञान विधि का जो है वाल्टर इसार्ड ने नेतृत्व में 1950 में किया गया था, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अर्थशास्त्र, संसाधन प्रबंधन, स्थानिक सिद्धांत और नगरीय और प्रादेशिक नियोजन, परिवहन, संचार, मानव भूगोल, जनसंख्या वितरण और भूदृश्य परिस्थिति और पर्यावरण गुणवत्ता के विषय में विशेष बातें जो को प्रदर्शित भी किया गया।